Welcome back after break. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। Just before we went for the break, we began studying chapter 3, the Father's works. ब्रेक में जाने से पहले हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे, पिता के कार्य। And we are looking at how Jesus did the Father's works. और हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार यीशु ने जो है पिता के कार्य किए And what Jesus taught us by doing the Father's और works. यीशु ने हमें क्या सिखाया पिता के कार्य करते हुए। Jesus gave importance to healing, signs, miracles, and wonders. That is a supernatural. यीशु ने जो है चंगाई, छुटकारा और चमत्कार को महत्वता थी, जो कि अलौकिक कार्य है, To point out that he is the Messiah. ये बताने के लिए कि वो मसीहा है। And he also said, I must do the Father's works. और ये भी कहा कि मुझे पिता के कार्य करने चाहिए I must bear witness to the Father. और मुझे पिता का गवाह होना चाहिए। And he also said that, he walked just like the Father walked. और उन्होंने ये भी कहा कि वो उस प्रकार चले जैसे पिता चला And he came to do the Father's will. और पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। And lastly, we were looking at about how Jesus was confident in prayer. तो आखिर में हम ये देख रहे थे कि यीशु कैसे अपने प्रार्थना जीवन में बहुत ही दृढ़ थे। So when Jesus was praying at Lazarus's grave, तो जब यीशु जो है लाजर की कब्र में प्रार्थना कर रहे थे, he does not pray, Father, please raise Lazarus from the dead. तो उन्होंने ऐसे प्रार्थना नहीं की कि पिता कृपया लाजर को मृत्यु से जिला दो। He said, Father, I thank you that you have heard me. तो वो कहते हैं, पिता धन्यवाद कि आपने मुझे सुन लिया है। And he expected Jesus to answer his prayer. और ये उम्मीद की कि पिता उनकी प्रार्थना का उत्तर देगा। And we see how was Jesus confident in expecting the Father to work. और हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार जो यीशु है पिता के कार्य को देखने के लिए पूरा हियावी था। We see that Jesus was very close to the Father. हम ये देखते हैं कि यीशु जो है पिता के बहुत ही करीब था। And out of this closeness, he had this confidence that the Father would answer him. और उसी करीबी के साथ ही उन्हें इस बात का हियाव था कि पिता जो है उन्हें उत्तर देगा। So just like Jesus, तो यीशु की तरह ही the Father also wants all of us as believers तो पिता हम सबको भी चाहता है विश्वासी होने के नाते to grow in the same confidence in prayer. हम उसी हियाव में बढ़े प्रार्थना के में। We also see that Jesus lived to glorify the Father. और हम ये भी देखते हैं जो पिता है, जो यीशु है, पिता को महिमा देने के लिए जिया। Everything that Jesus did was to glorify the Father. जो कुछ भी यीशु ने किया वो पिता को महिमा देने के लिए था। So if you look at John chapter 12 verse 28, और यदि हम देखें यूहन्ना 12 अध्याय वचन 28, it's on page number 116. पेज नंबर 123 पे है। Please read John chapter 12 verse 28, not verse 27, verse तो 28. कृपया पढ़ें यूहन्ना 12 अध्याय वचन 28। So Jesus is praying to the Father that his name will be glorified. तो यीशु मसीह जो है पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके नाम की महिमा हो। And look at what Jesus says at the end of his ministry. और देखिए कि वो अपने जीवन की सेवकाई के अंत में क्या कहते हैं। At the end of his ministry, Jesus could say what he said in John chapter 17 verse 4. तो उनकी जो सेवकाई का अंत था उसमें भी वो क्या कहते हैं, देखिए यूहन्ना 17 वचन 4 में। Everyone please read John chapter 17 verse 4 please. तो कृपया सब इसे पढ़े। So what does Jesus say? तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? I have glorified you on the earth. कि मैंने तुम्हारी महिमा की है पृथ्वी पे। Jesus does not say, Father, I think I glorified you on the तो earth. यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते कि पिता मैं सोचता हूँ कि मैंने शायद आपको महिमा दी है पृथ्वी पे। Maybe I would have glorified you sometimes, maybe sometimes I did not glorify और you. शायद किसी समय पे आपको महिमा दी होगी, किसी समय पे नहीं दी होगी। But Jesus very confidently tells लेकिन यहाँ पे यीशु बड़े ही हियाव के साथ बताते to हैं the Father, पिता को, I have glorified you on the earth. कि पृथ्वी पर मैंने तुम्हारी महिमा की है। What is the meaning of glorified? महिमा देने का मतलब क्या है? When we say,
God is glorified in this place, तो जब हम कहते हैं कि पिता की महिमा हो इस जगह पे, or the glory of God is seen in this place. और कि परमेश्वर की महिमा इस जगह पे दिखी है, So what do we understand by this word glory or mahima? तो इस शब्द से हम क्या समझते हैं? चंगाई और छुटकारा? Okay, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाना, lift up the name of Jesus, okay? Basically the meaning of the word glory of God और जो आमतौर पे अगर देखें जो परमेश्वर की महिमा है उसका मतलब or manifesting the glory of God कि जो दिखती है परमेश्वर की महिमा, has two words. उसके दो शब्द हैं. It talks about the who, there are two sentences, sorry, तो यहाँ पे दो वाक्य होते हैं. who God is and what he does. तो ये होता है कि परमेश्वर कौन है और वो क्या करता है. So when we say the glory of God is manifested in this church or in this prayer meeting, तो जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा इस जगह पे या इस कलीसिया में दिखी है, where we are saying the nature of God is being revealed in this place. तो हम ये कहते हैं परमेश्वर का जो स्वभाव है वो इस जगह पे प्रकट हुआ है. Nature of God means, you know, who God is. He's loving, he's compassionate, he's caring, he's gracious, he's merciful, he's forgiving. परमेश्वर के स्वभाव का मतलब है वो कौन है, वो प्रेम करने वाला है, वो दया करने वाला है, छुड़ाने वाला है, हमें सही रखने वाला है. And what he does. और वो क्या करता है? That means he heals, वो चंगा करता है, he gives answers to our हमारी prayers, प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, he delivers us, वो हमें छुटकारा देता he है, restores us, हमें फिर से हमारा जीवन वापस he देता है, encourages वो us, हमें प्रोत्साहित करता है, he strengthens us. हमें ताकत देता है. So when we say we see the glory of God, we are basically saying we're seeing who God is and what he does. तो जब हम कह रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा दिखी, तो उसका मतलब यही है कि परमेश्वर कौन है और वो क्या करता So है. Jesus is saying by all the things that he did on the earth, he was able to show people what is God's nature, his character, and what the Father does. तो यीशु कह रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने पृथ्वी पे किया उससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि पिता कौन है, पिता क्या करता है, उसका स्वभाव क्या है. And he says, look at John chapter 17 verse 4 on तो और page वो number कहते हैं, 116. यूहन्ना 17 अध्याय वचन 4 देखें, On page number 116, पेज नंबर 123 पे. he says, I have finished the work which you have given me. वो कहते हैं जो काम तूने मुझे करने को दिया था. So we see that Jesus spent his entire life just honoring the Father. तो हम भी देखते हैं कि यीशु जो अपने पूरे जीवन भर प्रभु को महिमा, पिता को महिमा देते रहे. So the way we live our lives, तो जिस तरीके से हम हमारे जीवनों को we जीते must हैं, also be able to reveal the nature of God through our lives. तो हमें भी परमेश्वर का जो स्वभाव है हमारे जीवन से प्रकट करने की जरूरत है. How do we know that we are revealing the nature of God in our lives? तो हम ये कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं? If you look at our lives, whether we are manifesting the fruit of the Spirit, तो जब हमारे जीवनों को देखें तो देख सकते क्या हम जो आत्मा के फल हैं उनको दिखा रहे हैं. whether there is love, joy, peace, तो वहाँ पे प्रेम है, आनंद है, शांति है, patience, kindness, goodness, धीरज है, भलाई है, करुणा है, faithfulness, gentleness, and self-control. और विश्वास योग्यता है, वहाँ पे संयम है. So we must keep checking our lives तो हमें हमारे जीवनों को हमेशा देखते रहना and चाहिए see if we are manifesting the nature of God. और देखिए कि क्या हम परमेश्वर के स्वभाव को दिखा रहे हैं. When we are manifesting the nature of God, we are actually manifesting his glory here on earth. जब हम परमेश्वर के स्वभाव को दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर की महिमा को इस पृथ्वी पे दिखा And रहे we हैं. must ask ourselves, are we doing the Father's works? और हमें ये पूछना चाहिए खुद से कि क्या हम परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं. Are we preaching and teaching and healing and delivering people? तो क्या हम प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं. So we see that Jesus' entire life was devoted to glorifying and honoring the Father. तो हम ये देखते हैं कि जो यीशु का पूरा जीवन जो था वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए, पिता को महिमा देने के लिए समर्पित था. Now, just as the Father sent Jesus, the Father is also sending you and me. तो जैसे पिता ने यीशु को भेजा वैसे पिता हमें और आपको भी भेज रहा है. We are called
to walk with the Father as Jesus did. तो जैसे यीशु परमेश्वर के साथ चला, पिता के साथ चला, वैसे ही हमें भी बुलाया गया है चलने के We लिए। are called to live in fellowship with Jesus. हम यीशु के साथ संगति में जीने के लिए बुलाए गए We हैं। are called to hear His voice, हमें उसकी आवाज को सुनने के लिए बुलाए गए हैं, obey His will, उसकी आज्ञा को मानने के लिए and do His works. और उसके कार्य करने के लिए। And look at what Jesus promised us if we do that. और देखिए यीशु हमसे क्या वायदा करते हैं जब हम ये सब करते हैं तो। In John chapter 14, verse 12. और हम देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय वचन 12 में। It's on page number 117, the bottom of page number 117. और ये पेज नंबर 124 है, उसके सबसे नीचे में। We've already looked at this verse, but I wanted to look at it again and read it quietly for yourselves. तो हमने पहले ही देख लिया, लेकिन फिर से चाहते एक बार आप इसे खुद से पढ़ें। So do you believe what Jesus said in this verse? तो क्या आप विश्वास करते हैं जो यीशु ने इस वचन में कहा है उस पे? Who did Jesus say this? Who is this promise for? तो क्या लगता है ये वायदा किसके लिए है? Huh? For me, yes, for us. हमारे लिए। So our goal in looking at Jesus's life in this chapter तो हमारा जो लक्ष्य था यीशु के जीवन को देखना इस अध्याय में, is not just simply to learn what Jesus did and say, oh, very good. तो वो सिर्फ इतना ही नहीं था उसको सीखे कि यीशु ने क्या किया और बोले कि हाँ बहुत बढ़िया। It is for us to also walk as Jesus walked ये हमारे लिए भी है कि जैसे यीशु चला वैसे ही चलने के लिए, and to continue doing the Father's works just like Jesus did. और जैसे यीशु ने पिता के कार्य किए उनको करते रहना, उन्हें जारी रखना। Now, one of the reasons why what do you think is the reason why Jesus came to this earth? तो आपको क्या लगता है वो कारण क्या होगा कि यीशु इस पृथ्वी पे आए? Why do you think God became man? आप क्यों सोचते हैं कि जो परमेश्वर है वो मनुष्य बना? Can you tell me some of the reasons? क्या आप कुछ कारण हमें बता सकते हैं? To die for our sins. हमारे Okay. पापों के लिए मरने के लिए। Why else did Jesus come to the earth? और क्यों यीशु पृथ्वी पे आए? To do the Father's will, okay? पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, To reveal the Father's works, or to reveal who the Father is. और ये प्रकट करने के लिए कि पिता कौन है। Okay, to wash away our sins, the first one, we said already. Second one, to reveal the Father to us. और जो पिता है उसे हमारे सामने प्रकट करना। To reveal the Father's nature and what the Father's works are. पिता का स्वभाव हमें दर्शाने के लिए और उसके कार्य क्या है वो बताने के And लिए। what else, why else you think Jesus came to the earth? और आप क्यों सोचते हैं कि यीशु आए इस पृथ्वी पे? हाँ? ये हो गया, first is salvation, हाँ? पहला उद्धार है। हाँ? To teach us how to live. हमें ये सिखाने के लिए कि कैसे जीना है। See, Jesus could have come in the morning, died on the cross in the afternoon, resurrected and gone back, right? तो यीशु सुबह में आए होते, दोपहर में मरे होते और फिर से जीवित होके वो चले गए होते। But why did he live on this earth for 33 years? लेकिन वो इस पृथ्वी पे 33 साल तक क्यों जिए? Why? क्यों? Yes, to become a model for us. जिससे कि हमारे आदर्श बन सके। Why did God become fully man? जो परमेश्वर है वो पूरी तरह से मनुष्य क्यों बना? Why did he live as a human being all these 33 years? पूरे 33 साल तक मनुष्य की तरह क्यों जिए? Because he wanted to be a model, an example. क्योंकि वो एक उदाहरण होना चाहते थे, हमारे आदर्श बनना चाहते थे। So Jesus is saying, when I could do it, you can do it. तो यीशु कह रहे हैं कि यदि मैं कर सका तो तुम भी कर सकते हो। Amen. आमीन। When Jesus could have an intimate relationship with the Father, he's saying you can also have that intimate और जब relationship. यीशु का रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत घनिष्ठ हो सकता है तो वो कह रहे तुम्हारा भी हो सकता When है। Jesus is saying, I can do the supernatural, you can also do the और supernatural. यीशु कह रहे हैं कि यदि मैं अलौकिक कार्य कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। Jesus is saying, when I walk with the Father and I heard the Father and did the Father's works, you can do the same thing. तो यीशु कह रहे हैं यदि मैं पिता के साथ चला, उसकी आवाज को सुना, उनके कार्यों को
किया तो तुम भी कर सकते So हो। Jesus is saying you can continue the work of healing, deliverance, miracles, restoration, and bring glory to God. तो यीशु कह रहे हैं कि तुम भी वो चंगाई, छुटकारा और लोगों के जीवन को वापस लाने का कार्य कर सकते हो और परमेश्वर को महिमा दे सकते हो। Amen? आमीन। No amens? Can I hear a louder amen? तेज से आवाज आमीन कह सकते हैं। So can we put our right hand up, everybody? हमारा सीधा हाथ ऊपर कर सकते हैं And we can say, I will be like Jesus. और बोलेंगे मैं यीशु की तरह बनूंगा, I will do the Father's works. मैं पिता के कार्य करूंगा I will continue to do the Father's और मैं works. पिता के कार्य करना जारी रखूंगा। I will do the supernatural. मैं अलौकिक कार्य करूंगा, I will do the Father's will. मैं परमेश्वर की इच्छा करूंगा And I will glorify the Father. और मैं पिता को महिमा दूंगा। What you said was not something that you just repeated after me. जो आपने कहा वो कुछ ऐसा नहीं था कि आपने हमारे पीछे दोहराया Just मजाक के लिए. बस ऐसे ही, But it is something that is a serious commitment that you're making. लेकिन वो एक गंभीर चीज है, गंभीर वायदा है जो आप परमेश्वर के साथ उसे बना रहे So हैं। those of you who want to make that serious commitment, तो जो कोई भी आप उस जो गंभीर बात है जो हमने बोला उसे बनाना चाहते so हैं, you can put your hand on your heart आप आपके हाथों को आपके हृदय पर रख सकते and हैं just close your eyes. और बस आंखें बंद करें। Whoever wants to do it, and quietly in your heart, you can say everything that we have made a declaration. और जो भी करना चाहते हैं आप आपके हृदय में शांति से आप वो कह सकते हैं जो भी हमने बोला। You can say, Jesus, I want to be like you. तो आप कह सकते हैं यीशु मैं आपकी तरह होना चाहता हूँ, I want to do the Father's will. मैं पिता की इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, I want to do the Father's works. मैं पिता के कार्य करना चाहता हूँ, I want to glorify the Father. हम पिता को महिमा देना चाहता हूँ And I want to do greater things than what you have done, Jesus. और जो कार्य आपने किए हैं मैं उनसे भी बड़े बड़े कार्य करना चाहता हूँ। And this is my commitment to you. और ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I ask you आपको मांगते हैं, and I pray हम प्रार्थना करते हैं that you would empower me कि आप मुझे सामर्थ देंगे and enable me और मुझे योग्य बनाएंगे to do and be like Jesus here on the earth. और जैसे यीशु इस पृथ्वी पे था उस तरीके से बनने के लिए और रहने के लिए। Father, be glorified in and through my life, my actions, and my ministry. पिता मेरे जीवन में, मेरे जीवन के द्वारा, मेरी सेवकाई में हर एक तरीके से आपको महिमा मिले। So you can just say this prayer quietly in your heart and believe and make that commitment. तो ये प्रार्थना आप आपके हृदय में शांति से कह सकते हैं और उस वाचा बना सकते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Okay, if you finish praying, you can open your eyes. यदि आपकी प्रार्थना समाप्त हो चुकी है तो आप आंखें खोल सकते हैं। Now we'll move on to chapter 4. हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। We'll just learn how to minister healing and deliverance from Jesus. और हम ये देखेंगे, यीशु से ये सीखेंगे कैसे चंगाई और छुटकारे की सेवा करते हैं। Now, all of these points we've already studied in chapter 1, 2. और जो यहाँ पे बिंदु दिए हमने पहले अध्याय में, दूसरे में इसे पढ़ चुके हैं। So we're not going to look at it in detail तो हम इनको बहुत ज्यादा गहराई से नहीं देखेंगे because I've already explained all of these things. क्योंकि हमने पहले ही ये सारी चीजें बता दी हैं। But if you look at page number 118, और यदि आप पेज नंबर 125 देखें we see that when Jesus ministered healing and deliverance, और हम ये देखते हैं कि जब यीशु ने चंगाई और छुटकारे की सेवा की, he did the will of the Father. उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, He exercised faith. अपने विश्वास का अभ्यास किया, He had compassion on the
people, लोगों के ऊपर करुणा दिखाई, and he did it through the anointing of the Holy और वो Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा की। Now, I want to just share a few important things about the anointing of the Holy Spirit. और हम जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। We know that Jesus did all the signs. How did Jesus do all the signs, miracles, and wonders? और कैसे यीशु ने सारे चमत्कार चिन्ह चमत्कार किए। You should say, to the power of the Holy Spirit, तो हमें कहेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा or through the anointing of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। When we talk about anointing or this word abhishek, what is the meaning of it? तो इसका मतलब क्या होता है जब हम अभिषेक के बारे में बात करें तो? What's the meaning of anointing? Anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक का मतलब क्या होता है? Huh? Varpuri, fullness. Anointing has two words, two P's, two words starting with the alphabet P. और जो अभिषेक है वो इंग्लिश में पी से शुरू होने वाले दो अक्षर होते हैं। The presence of the Holy Spirit, yes. पवित्र आत्मा की उपस्थिति And the power of the Holy और Spirit, yes. पवित्र आत्मा की सामर्थ। So when we say anointing of the Holy Spirit, और जो हम कहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक, it means the presence and the power of the Holy Spirit. इसका मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का सामर्थ होता है। So we see that Jesus ministered with the anointing of the Holy Spirit. और हम ये देखते हैं कि यीशु ने जो सेवकाई की वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा की। That means he did it through the power and the presence of the Holy Spirit. इसका मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ और उपस्थिति के द्वारा उन्होंने किया। In the same way, we must also be sensitive to the Holy Spirit. और उसी तरीके से हमको भी पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। What is the meaning of being sensitive to the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होने का मतलब क्या है? Sometimes the Holy Spirit will say, go and pray for that person. तो कभी कभार पवित्र आत्मा बोलेगा कि जाके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। Or when you're praying for somebody, और जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे the हैं Holy Spirit will say, this sickness is because of this reason. और पवित्र आत्मा में बताएगा कि ये जो बीमारी है वो इस कारण से है Or it is because of this demonic affliction. और वो इस दुष्ट आत्मा के कारण से है। So even as you're praying, you must keep listening to the Holy Spirit. तो जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा को भी सुनते रहना है आपको। So when somebody comes and shares a problem with you, तो जब कोई आपके पास आता है, कोई परेशानी आपके साथ वो बताता है and they're telling their problem to you, और वो आपकी परेशानी को उनकी परेशानी को आपको बता रहे you हैं can quietly tell in your heart, Holy Spirit, what is the answer? What should I tell them? और आप शांति से आपके हृदय में पूछ सकते हैं पवित्र आत्मा क्या उत्तर है, मुझे उन्हें क्या बताना So keep चाहिए। listening to the person, or also listen to what the Holy Spirit is telling you. तो उस व्यक्ति को भी सुनते रहिए और पवित्र आत्मा को भी सुने कि वो क्या कहना चाहते And हैं। when we are sensitive to the Holy Spirit, और जब हम पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं, when are we sensitive to the Holy Spirit? हम कब पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं? When we are constantly praying and speaking to the Holy Spirit. जब हम लगातार प्रार्थना और पवित्र आत्मा से बात कर रहे होते हैं। Now, some of us pray to Jesus and to God the Father, but we don't speak to the Holy Spirit. और हम में से कुछ लोग जो है पिता से यीशु से प्रार्थना करते हैं लेकिन पवित्र आत्मा से नहीं बात करते। So it's important for us to speak to the Holy Spirit. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए पवित्र आत्मा से बात करना। So when you're going to buy something, तो जब आप कुछ खरीदने जा रहे हैं even you're going to buy a snack or a chips packet, और चाहे आप कुछ खाने का सामान भी खरीदने जा रहे हैं or some shirt, pant, or some clothes, या फिर कोई कपड़े खरीदने जा रहे हैं or you're going to do some work, या कुछ कार्य करने जा रहे हैं or you're going to your office and you have a job, and you're a teacher, you have something to do, or you have to cook at home, you have some responsibilities. और यदि आप ऑफिस जा रहे हैं, अध्यापक वहाँ पढ़ाते हैं जाके या फिर घर में भी कोई जिम्मेदारियां होती हैं, You can constantly keep speaking to the Holy Spirit and say, Holy Spirit, what do you want me to do? और आप लगातार पवित्र आत्मा से बात करते रह सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप मुझे क्या चाहते हैं मैं करूं, Show me what to buy. मुझे बताओ क्या खरीदना Show है, me how to do this work in the office. मुझे बताओ ये काम ऑफिस में कैसे करना है। Even as I'm cooking, help me to cook the best meal. तो जैसे हम खाना भी बना रहे तो हमें सबसे अच्छा खाना बनाने में मदद करो। So we can keep on talking to the Holy Spirit throughout the day. तो हम पूरे दिन भर भी हम पवित्र आत्मा से बात करते रह सकते हैं, Even in simple things. छोटी छोटी बातों में भी, And hear what the Holy Spirit is telling you. और वो सुने जो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है। So when you are ministering to people, you will
automatically know when the Holy Spirit is telling you and He will speak to you. तो जब आप सेवा कर रहे हैं तो आप खुद में खुद जानेंगे कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको क्या बताना चाह So रहा it's है। important for us to be sensitive to the Holy तो ये Spirit. हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील And रहें we must be yielded and obedient to the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बने रहना चाहिए। So when the Holy Spirit is saying, don't do that, और जब पवित्र आत्मा कह रहा है कि उसे मत करो, don't, the person has been rude to you, but you don't fight with them. और व्यक्ति आपके प्रति बहुत ही सख्त बर्ताव किया लेकिन आप उनसे मत झगड़ो। The Holy Spirit will tell you, don't back answer. और पवित्र आत्मा आपको बताएगा वापसी में लौट के जवाब ना दो। Don't watch that thing. उस चीज को मत देखो। Even in simple things, the Holy Spirit can speak to you. और साधारण बातों में भी, साधारण चीजों में भी पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है। I'll give you an example. एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे। My friend sent me a nice box of Alfonso mangoes. और मैम के कोई दोस्त थे, उन्होंने बहुत एक अच्छा बॉक्स जो आम का भरा था उसे भेजा। And the Alfonso mangoes are very sweet. और जो वो आम होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं। And my dad really loved it. और उनके जो पिता है वो सच में आम को बहुत पसंद करते He हैं। said, find out from her where she bought it and buy one more box. तो वो कहते हैं कि इसको पता करो उन्होंने कहाँ से खरीदा और एक और जो बॉक्स है उसे खरीद के लाओ। So I asked her. तो उन्हें पूछा फिर। She said, I'll send you the box. तो उन्होंने कहा हम आपको भेज देंगे। And then when I asked her how much the money, she didn't take the money. तो जब उन्हें पूछा कितने पैसा का है तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। And we had opened the box on the dining table. और तो वो जो डब्बा था फिर उसे खोला डाइनिंग टेबल पे। And my maid looked at the mangoes and she asked me for one mango. और जो इनके काम करने वाले हैं घर में, उन्होंने पूछा आम को देख के एक आम मांगा। And I didn't give her. और उन्होंने नहीं दिया। And that night when I was making chapatis, और उसी रात जब मैम रोटी बना रही थी, I remembered what my maid had asked me for the mango. तो उन्हें फिर याद आया कि उनके जो साथ में काम करने वाले हैं घर में, उन्होंने आम मांगा था। And the Holy Spirit is telling me, और पवित्र आत्मा ये बता रहा है मुझे, freely you have received, freely give. कि तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम मुफ्त में ही उन्हें दो। I didn't want to give her, but the next day when she came, I gave her some mangoes. तो वो देना नहीं चाहती थी, लेकिन जब अगले दिन वो आई तो उन्हें कुछ आम दिए। So you see, in simple things like this, you can still hear the Holy Spirit speak to you. तो हम देखते हैं कि हमारी छोटी छोटी चीजों में भी पवित्र आत्मा हमसे बात कर सकता And we है। need to be yielded and obedient to the Holy तो Spirit. हमें पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। I could have said, no, this is not the Holy Spirit. I don't want to give the mangoes. I wouldn't have given her the mangoes. तो ऐसा शायद कह सकती थी मैम कि नहीं ये पवित्र आत्मा की बात नहीं है, मैं उन्हें आम नहीं दूंगी, और उन्हें आम नहीं दिए होते। But we need to be obedient to what the Holy Spirit is telling us. लेकिन हमें जो पवित्र आत्मा कह रहा है उसके प्रति आज्ञाकारी होना The चाहिए। more we listen to the Holy Spirit and be obedient when we are ministering healing, the Holy Spirit will speak to us and tell us what to do. तो जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं, तो जो हमें वो बताते हैं हम उसे सुन पाते हैं। And sometimes when we are ministering healing, और जब हम कभी कभार जब चंगाई की सेवा कर रहे होते it's हैं, good to make the environment where God's glory can come in. तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे वातावरण को ऐसा बनाएं कि जहाँ परमेश्वर की महिमा आ सके। You can have some good praise and worship. और अच्छी सी कोई स्तुति आराधना हो सकती है। You can also preach the word and build up the faith of the people. और वहाँ पे प्रचार भी कर सकते हैं, लोगों के विश्वास को बना सकते हैं। And there can be lot of prayer that goes in. और वहाँ पे बहुत सारी प्रार्थना भी हो सकती है जो होती है। And people can come with great expectancy, just believing God to heal. और लोग आ सकते हैं बहुत ही उम्मीद के साथ कि वो चंगा करेगा उन्हें। And when you have that kind of an environment, God will move in a mighty way. और जब उस प्रकार का वातावरण होता है तो परमेश्वर बड़े ही सामर्थ के तरीके से वहाँ कार्य करता है। But we need to understand, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है, when Jesus ministered healing and deliverance, जब यीशु ने चंगाई और छुटकारे की सेवा की, was there this kind of environment where there was high praise and worship, lot of prayer, teaching and preaching? How was the environment? क्या वहाँ पे ऐसा वातावरण था कि अच्छी स्तुति आराधना हो रही है, बहुत सारा प्रचार हो रहा है? कैसा वातावरण था? Lot of prayer. बहुत सारी प्रार्थनाएं। Come on, tell me, when Jesus was ministering, how was the तो environment? जब यीशु सेवा कर रहे थे तो कैसा वातावरण था? ऐसे कुछ नहीं था, so कैसे था? What was the environment? तो कैसा वातावरण था? शांत था? शांत था।
Silence? Was there silence? वहां पे शांति थी? No. What was the environment? तो वो वातावरण कैसा था? The people came to Jesus for healing. जो लोग यीशु के पास चंगाई के लिए आए, Huh? It was crowded and noisy, yes. वहां पे बहुत भीड़ थी, शोर था, Because lot of people came. क्योंकि बहुत सारे लोग आए It was a marketplace. और वो बाजार का जगह था। And Israel is basically a very dusty place और जो इस्राएल है बहुत ही मिट्टी जैसा देश है and very hot. और बहुत गर्म भी। Was there a lot of praise and worship? क्या वहां पे बहुत सारी स्तुति आराधना थी? No. Was there a lot of prayer? क्या वहां पे बहुत सारी प्रार्थनाएं थी? No. How was the environment? It was dusty, it was noisy, it was hot. What else? तो जो वातावरण था वो मिट्टी भरा था, पूरा शोर का था। Did some people come expecting healing? क्या कुछ वहां पे कुछ लोग आए चंगाई की उम्मीद करते हुए? Yes, but most of the people came why? लेकिन अधिकतर लोग आए क्यों? हाँ? देखने के लिए आए. Okay, they came to see Jesus doing the miracles. यीशु को चमत्कार करते हुए देखने के लिए आए। And also what? और क्या? To catch him doing something wrong so that they can move him out of the way. और उन्हें इसीलिए आए, उन्हें देखे कि अगर वो कुछ गलत करते हुए पकड़े जाए और उन्हें फिर वो बाहर ले जा And दोष लगाने के लिए. और दोष लगाने के लिए। To blame him for some things that he's doing. और उन्हें उस बात के लिए दोष लगाने के लिए जो भी वो कर रहे हैं। So sometimes तो कभी कभार when we are ministering healing and deliverance, जब हम चंगाई और छुटकारे की सेवा कर रहे होते it हैं, can be in a bus, वो बस में भी हो सकता है, it can be in a marketplace, वो जो बाजार की जगह वहां हो it can सकता be है, in the mall, और वो किसी मॉल में हो सकता है, it can be on the street वो गलियों में हो सकता है, where a lot of noise is there, traffic is there. जहाँ पे बहुत सारा जाम होता है, बहुत सारा शोर होता है, There's no praise and worship, there is no lot of prayer, वहां पे कोई बहुत सारी प्रार्थनाएं नहीं है, स्तुति आराधना नहीं है। but doesn't mean that we should not minister healing and तो deliverance. क्या ये मतलब है तो हमें चंगाई और छुटकारे की सेवा नहीं करनी चाहिए? It can be also in the railway station, in the train, anywhere. रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में, कहीं भी हो सकता है। And God is leading you to pray for somebody. और परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है किसी के लिए प्रार्थना करने के Don't लिए। say, brother, sister, please come to church. There'll be a lot of praise and worship, prayer. It'll be quiet, then I'll pray for you. तो ऐसा ना बोले कि आप भाई और बहन आप कलीसिया में आए तो वहां पे बहुत सारी प्रार्थना होगी, बहुत सारी स्तुति आराधना होगी, तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। But if God is telling you pray there in that fish market, in the railway station, in the bus stop, just pray. और लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप जहाँ पे भी है प्रार्थना करें, चाहे बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, कहीं पे भी है। You might not feel very anointed there, you might not feel the environment very anointed, but just pray, God will move. तो शायद आप वहाँ पे खुद को अभिषिक्त महसूस ना करें, जो वातावरण है उसको अभिषिक्त महसूस ना करें, लेकिन आप केवल प्रार्थना करें। Are you able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? So God can work even in the places where there is a lot of anointing and also in the common marketplace. तो परमेश्वर जो है जहाँ बहुत सारा अभिषेक है उस जगह पे भी कार्य कर सकता है, और जहाँ साधारण जगह है वहां भी कार्य कर सकता है। Now look at page number 127. तो ये पेज नंबर 135 देखें। Another issue of sin and salvation. और एक और पाप और उद्धार का विषय। Now I have a nice, interesting question for all of you. तो हमारे पास एक प्रश्न है बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए, All the healing and deliverance that Jesus did, कि जितनी सारी चंगाई छुटकारा यीशु ने किया, did he do it before the dying on the cross or after dying on the cross? तो वो उन्होंने क्रूस पे मरने से पहले किया या उसके बाद किया? Before, right? पहले। That means all the people were unsaved. इसका मतलब जो वो लोग थे वो सारे बचाए हुए नहीं थे। So did Jesus tell them, no, I can't pray for healing and deliverance for you because I've not died on the cross for your sins? तो क्या यीशु ने उनसे ऐसा कहा था कि नहीं मैं तुम्हारी चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी तक मैं क्रूस पे नहीं मरा हूँ? Or you're a sinner and so you cannot receive healing? और तुम पापी हो तो तुम चंगाई नहीं पा सकते हो? Does Jesus say that? क्या यीशु ने ऐसा कहा? No, but sometimes we think we can't pray for people because they are very sinful and they cannot receive healing. और कभी कभार हम सोचते हैं कि हम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पापी है और वो चंगाई नहीं पाएंगे। But Jesus, at most of the times he prayed for all the people and they were healed. We looked at some of the verses yesterday. और अधिकतर समय पे जब यीशु ने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की वो चंगे हुए। कल हमने बहुत
सारे वचनों को भी देखा था, But there were some times लेकिन कुछ समय ऐसे थे when Jesus और जब यीशु attributed their sickness to some sin, और जो उनका जो पाप था उसके व्यवहार को दर्शाया, he said it was because of their sin that they had this sickness. और वो इस प्रकार बताता था कि उनके पाप हैं जिसके कारण उनकी ये बीमारी है। And so we see that Jesus dealt with their sin first तो हम ये देखते कि यीशु पहले उनके पापों से उस बात को साझा किया and then healed them. और तब उन्हें चंगा किया। Can you give me one example? तो कोई उदाहरण आप हमें बता सकते हैं? When Jesus, dealt with their sin first and then healed the person. तो वो कौन सी जगह थी जब यीशु ने पहले उनके पापों के साथ बात की, उसके बाद उन्हें चंगा किया? The paralyzed man. जो लकवे का रोगी था। Remember this, Jesus was in this house. तो याद जब यीशु एक घर में थे, The full crowd of people outside, inside, everywhere. तो लोग पूरा वहाँ भीड़ थी, अंदर भी बाहर भी। And the friends bring up their paralyzed friend. और जो वहाँ पे लोग थे, उनके दोस्त थे, वो एक लकवे के रोगी को लेके आते And हैं they carry him on the mat. और वो उसे टाट पे लेके आते हैं And they can't get inside. So what do? और वो अंदर नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? From the roof, they remove the tiles. ऊपर से छत पे से उन्हें लेके आया And suddenly everybody is seeing who is this coming from above. और जब उन्होंने ऊपर का वो चीज हटाया तो अचानक से सबको ही देखते कि कौन आते हुए दिख रहा है। And there they see a paralyzed man. तो वहां पे वो एक लकवे के रोगी को देखते हैं। And what does Jesus say? और फिर यीशु क्या कहते हैं? Mark chapter 2 verses 1 to 12. मरकुस 2 अध्याय वचन 1 से 12। He says, first Jesus says, son, your sins are forgiven. तो पहले वो कहते हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। And then he says, arise, take your bed and go to your house. और फिर कहते हैं कि उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। So we see that Jesus first dealt with his sin and then healed him. तो हम ये देखते हैं कि यीशु ने जो है पहले उनके पाप के विषय में उसका सामना किया, फिर उन्हें चंगा किया। Now we'll look at another example. और फिर एक और उदाहरण देखेंगे। We'll come back to that pool of Bethesda. तो वापस फिर से जो बैतसैदा का तालाब था उसके वापस आएंगे। And Jesus heals that man who was paralyzed. यीशु ने जो वो लंगड़ा व्यक्ति था उसे चंगा किया। What does Jesus tell him? तो उसे यीशु क्या कहते हैं? Take up your bed or take up your mat and walk. कि अपना खाट उठा के चल। And immediately that man takes his bed and starts walking and he's very happy. और तुरंत वो व्यक्ति जो है उठकर चलने लगता है और बहुत खुश होता है। And then everybody sees him and then they're asking him and then he comes back after some time back to Jesus. और सब कोई उसे देखते हैं, सब पूछते रहते हैं, फिर वापस फिर से वो यीशु के पास आता है। And what does Jesus tell him और in John chapter 5? और यीशु क्या उसे बताते हैं यूहन्ना 5 अध्याय में? He says, when he meets him again, Jesus says, see, you've been made well. और जब यीशु उसको फिर से मिलते हैं तो कहते हैं कि देख तू चंगा हो गया है, Sin no more. फिर से पाप ना करना, Otherwise something worse will happen to you. ऐसा ना हो कि इससे कोई और भारी विपत्ति तुझ पर आ So पड़े। here in this instance, तो यहाँ पे इस घटना में we see that Jesus heals him first हम ये देखते हैं कि यीशु पहले उसे चंगा करते हैं, and then heals the person. And then, heals him first पहले उसे चंगा करते हैं and then deals with his sin. तो उसके बाद उसके पाप से सामना करते But हैं। in all the other cases when he heals the multitudes and the crowds of people, लेकिन और बाकी सारी घटनाओं में जब वो भीड़ को पूरा बहुत सारे लोगों को चंगा करते हैं, Jesus does not deal with their issue of sin. He just heals them. वो उनके जो पाप का कारण था उसके सामना नहीं करते बल्कि उन्हें चंगा कर देते And हैं। the example that we looked at in John chapter 9, और जो उदाहरण हम देखते वो यूहन्ना 9 अध्याय में, when the disciples look at the blind man, और जब जो चेले थे वो अंधे व्यक्ति की ओर देखते they say, हैं, Jesus, was he born blind or was it because of his sin that he was born blind or his parents' sin? तो वो चेले पूछते हैं क्या इसने पाप किया इसीलिए अंधा है या फिर इसके माता पिता ने पाप किया? And what does Jesus say? Neither this man sinned nor his parents sinned. और यीशु कहते हैं कि ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने। So what can we learn from this? तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? Now very important, I want all of you to listen. तो बहुत ही महत्वपूर्ण, हम चाहते हैं कि आप इसे ध्यान से सुने। We cannot attribute every sickness, disease that it is because of that person's sin. और हम हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि जो बीमारी है
वो उस व्यक्ति के किसी पाप से जुड़ी हुई है। There are times when you are praying for healing for yourself and for someone else. और ऐसे भी समय होते हैं जब हम हमारी चंगाई के लिए या किसी और की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। When God will heal the person first and then deal with their issue of sin. परमेश्वर पहले उन्हें चंगा करेगा, उसके बाद जो उनके पाप का कारण है उससे सामना करेगा। Okay, there can be some times when the Holy Spirit will say first deal with their sin and then pray for the healing. और कुछ ऐसे भी समय हो सकते हैं जब पवित्र आत्मा बोलेगा कि पहले उनके पाप का सामना करो, उसके बाद चंगाई का। So you just follow what the Holy Spirit is telling तो you. आप बस उसको सुने जो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है। But don't keep on telling everybody has sin and the sickness is because of sin. You need तो to बस hear the Holy Spirit. ये मत बोलते रहे हमेशा कि सबने पाप किया है और उसके कारण ही ये परेशानी बीमारी आई है। Are you able to understand? आप समझ पा रहे हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? No? नहीं। You said no. What didn't you not understand? In most cases, he healed people. कुछ बातों पे उन्होंने लोगों को पहले चंगा किया। In most cases, he healed the people without dealing with sin and salvation. अधिकतर जो घटनाएं थी उनमें उन्होंने लोगों को चंगा किया उनके पाप का सामना किए बिना। But in some instances in the Bible, लेकिन कुछ घटनाओं में जो बाइबल में है, we see that Jesus deals with their sin first and then heals them. तो हम ये देखते हैं कि यीशु उनके पाप से पहले उनका सामना करते हैं, उसके बाद उन्हें चंगा करते He हैं। says, son, your sins are forgiven, and then he heals that paralyzed man. और वो कहते हैं कि पुत्र तेरे पाप क्षमा किए गए हैं, उसके बाद वो जो लकवे का रोगी था उसे चंगा करते हैं। And the pool of Bethesda, he heals the paralyzed man first. और जो बेतसैदा झील में था व्यक्ति, पहले उसे वो चंगा करते हैं And then he tells him, don't sin no more, other something worse will happen. और उसके बाद वो कहते हैं कि अब और पाप न करना, नहीं तो कोई और बड़ी विपत्ति आएगी। But in most cases, Jesus does not say it's because of sin that is you're having the sicknesses. He just heals people. लेकिन अधिकतर केसों में यीशु ने ऐसा नहीं कहा ये पाप के कारण ही तुम्हारी बीमारी है, बस उन्होंने चंगा कर दिया। So when people come to us and ask for prayer, for healing, you just pray for them. तो जब लोग हमारे पास आते हैं चंगाई के लिए मांगते हैं तो केवल उनके लिए प्रार्थना करें। The Holy Spirit tells you first deal with their sin and then pray for healing, you do it. तो यदि पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि पहले उनके पाप से सामना करें उसके बाद प्रार्थना करें चंगाई के लिए, तो आप ऐसा करें। In some cases, when the Holy Spirit just tells you to pray for healing, just pray for healing. और यदि कुछ जगहों पे जब परमेश्वर आप जो पवित्र आत्मा है केवल चंगाई की प्रार्थना करने के लिए बोलता है तो आप वैसा करें। And in some cases, the Holy Spirit will tell you to heal first and then deal with their sin. और कुछ जगहों पे जो पवित्र आत्मा में बताएगा कि पहले उनको चंगाई दे उसके बाद उनके पाप का सामना So you करें। just have to do what the Holy Spirit is telling you, like Jesus did. तो ये बस उतना करना होता है जितना जैसा पवित्र आत्मा हमें कहता है, जैसे यीशु ने किया। You understood? Yes? No? आप समझ गए? Okay. Now, if you look at page number 128 and 129, पेज नंबर 137। if you look at page number 128 and top of page number 129, पेज नंबर 137 पे जब हम देखें there are different methods that Jesus used for healing. तो वहाँ पे अलग अलग तरीके दिए गए हैं जिनका यीशु ने उपयोग किया चंगाई के लिए। अलग-अलग बिंदु है, bullet points. I want you all to read those bullet points quickly. तो हम चाहते हैं कि आप जो वहाँ पे बिंदु दिए गए हैं उनको पढ़ें जल्दी से। So you will know how Jesus ministered healing and how we can minister healing तो as जिससे well. आप जानेंगे कि कैसे यीशु ने सेवा की चंगाई के लिए और हम कैसे कर सकते हैं। Only the bullet points you can read. केवल जो बिंदु दिए गए हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। The methods that Jesus used for healing. जो पद्धतियां यीशु ने इस्तेमाल की चंगाई के लिए। So these are some of the methods that we can also use. तो ये वो सारे कुछ तरीके हैं, ये पद्धतियां हैं जिन्हें हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ लिया?
If you finish reading, please look up so then we can continue. तो यदि आप पढ़ चुके हैं तो ऊपर देख सकते हैं। Okay, before we end this chapter, तो इस अध्याय को हम खत्म करें उससे पहले we look at the nature of the supernatural healing. तो जो अलौकिक चंगाई है उसका स्वरूप हम देखेंगे, उसका स्वभाव देखेंगे। So whenever Jesus ministered healing and deliverance, तो जब भी यीशु जो है चंगाई और छुटकारे की सेवा करते, what do we notice? तो हम क्या उसमें देखते हैं? Look at page number 129. पेज नंबर 138 पे देखेंगे। Can you tell me what are the things that we notice? क्या आप हमें बता सकते क्या क्या चीजें हैं जो हम वहां देखते हैं? How was the miracles that Jesus did? कैसे थे वो चमत्कार जो यीशु ने किए? It was immediate. That means it happened right there and then. तो वो तुरंत हुए थे, इसका मतलब वो उसी जगह हुए, उसी समय पर हुए। And what is the second thing? और दूसरा क्या है? Complete. The individual was completely healed or delivered from demonic जो व्यक्ति oppression. वहां पे थे वो पूरी तरह से चंगाई पाते थे, पूरा छुटकारा पाते थे। And what is the third one? तीसरा क्या है? Yes, people could check and see the miracle was done. और लोग वहां पे देख पा रहे थे, उसे जांच पा रहे थे कि जो आश्चर्य कर्म हुआ है। And what was the last thing? आखिरी क्या है? Yes, they glorified the Father in heaven. और वो परमेश्वर की महिमा करते। Amen. आमीन। So these are some things that we can also do when we minister healing and deliverance. तो ये वो कुछ ऐसा है जो हम भी कर सकते हैं जब हम चंगाई छुटकारे की सेवा करते हैं। तो Now we'll move to chapter 5. तो आइए हम अध्याय 5 पे चलें। We've already, we look in chapter 5, it's talking about 4 important keys or secrets to ministering, 4 important keys or secrets to minister as the Lord Jesus did. तो इस 5वें अध्याय में जो है 4 महत्वपूर्ण रहस्य या कुंजियां यहाँ बताई जा रही हैं, जैसे यीशु ने सेवकाई की उसके बारे में। It's on top of page number 131. पेज नंबर 139 के सबसे ऊपर पे है। So all of you, I wanted to read those 4 points, just those 4 points listed तो out केवल there. जो 4 बिंदु वहां पे हैं आप उन्हें पढ़िए। Finish reading? पढ़ लिया। So we already have spoken about all of these points. तो पहले ही हम इन सारे बिंदु के बारे में बात कर चुके हैं। So we're not going to look at this in detail तो हमें इन्हें पूरी गहराई से नहीं देखेंगे, because we've already mentioned how to, be intimate with the Father in chapter and be obedient with the Father, just like we studied in chapter 3. तो जैसे हमने अध्याय 3 में पढ़ा कि कैसे परमेश्वर के प्रति हमें आज्ञाकारी बने रहना है और हमारा रिश्ता घनिष्ठ होना है। And how do we minister based on the finished work of the cross, which is studied that in chapter 2. और अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि कैसे सेवकाई करें जो कार्य क्रूस पे समाप्त हुआ उसके आधार पे, And ministering from a place of dominion and authority. और सेवा प्रभुता और आधार के अधिकार के स्थान से सेवा करना, And the presence and the power of the Holy Spirit. और आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ के द्वारा सेवा We करना। studied in chapters 1, 2 and chapter 4. हमने इसे पढ़ा पहले में, दूसरे और चौथे अध्याय में। So it's just a repetition. तो ये फिर से दोहराया गया है। I like you all to just stay, if you're interested, to please read on your own. तो हम चाहेंगे कि यदि आप इसमें रुचि रखते तो आप खुद से इसे पढ़ लीजिए। Because I've already explained it, these are already explained in chapters 1, 2, 3 and 4. क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में pहले ही इसे पूरा बता दिया है। I'm going to move to chapter 6. और 6वें अध्याय की ओर हम चलेंगे। And look at chapter 6. I'm going to move to page number 149. और हिंदी किताब में पेज नंबर 158 की ओर चलेंगे। There's a very important question in this chapter. तो इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक, Is sickness a chastening of the Lord? क्या जो बीमारी है वो प्रभु की ताड़ना है? So there are 3 references given there. तो यहाँ पे 3 वचन बताए गए हैं। Sometimes people say और कभी कभार लोग कहते हैं that God made them sick to teach them a deep spiritual lesson. और लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें इसलिए बीमार किया कि वो उन्हें बड़ा ही आत्मिक सबक सिखाना चाहते हैं। Are you all listening?
क्या आप सुन रहे हैं? Have you heard people say that God has given them this sickness? और क्या आपने सुना हुआ है लोगों को ये कहते हुए परमेश्वर ने ये बीमारी उन्हें दी है Or God has made them sick और परमेश्वर ने उन्हें बीमार किया है to teach them a lesson उन्हें सबक सिखाने के लिए or to bring them back या फिर उन्हें वापस लाने के लिए or to teach a deep spiritual lesson? और उन्हें कोई गहरा आत्मिक सबक सिखाने के Have लिए? you heard this? Have you heard people say this? क्या आपने ऐसे सुना है लोगों को कहते हुए? Yes or no? हाँ या नहीं? Yes. And I've explained this to you, I think on when you asked that question, right? I think yesterday or day before yesterday. और हमने ये बात आपको बताई भी थी एक उदाहरण के तौर पे समझा के। That parents, when I said about naughty children, right? तो हमने बताया था शरारती बच्चों के बारे में If children are very naughty, और यदि जो बच्चे बहुत शरारती हैं the parents will not throw them from the second floor or third floor. तो जो माता पिता है उन्हें वो ऊपर से नीचे नहीं फेंकेंगे They will not put them in the midst of the traffic to get an accident और वो किसी ट्रैफिक में नहीं डाल देंगे जिससे उनको दुर्घटना हो जाए or put them next to a COVID patient to get COVID, और या जो कोविड का कोई बीमार व्यक्ति है उसके साथ नहीं रखेंगे जिससे उसे कोविड हो जाए so that they learn a lesson जिससे कि वो सबक सीख सके and they will learn the importance of obeying their parents or और- how loving their parents are. और वो उनके पिता को आज्ञा मानने का महत्वता फिर समझेंगे। So we said, just like our earthly parents won't do it, तो हमने कहा कि जैसे हमारे सांसारिक माता पिता नहीं करेंगे will our heavenly Father give us sickness and disease to teach us some spiritual lesson? तो क्या हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमें बीमारियां रोक देगा सबक सिखाने के लिए? No, नहीं। right? But what does God do when we are disobedient, arrogant, stubborn, don't listen? लेकिन परमेश्वर क्या करता है जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जिद्दी रहते हैं, नहीं सुनते हैं? I remember I told you the example of this bottle. तो याद है आपको जो हमने बॉटल का उदाहरण दिया था? I said when we are disobedient, stubborn, arrogant, and don't listen to God, तो हमने बताया था कि जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते, जिद्दी रहते हैं, उसकी बात को नहीं सुनते हैं, we move out of the spiritual covering of God. तो जो परमेश्वर की आत्मिक सुरक्षा है हम उससे अलग हो जाते We हैं। have a spiritual covering हमारे पास आत्मिक सुरक्षा है and we move out of that spiritual covering. और उस आत्मिक कवच से हम अलग हो जाते And हैं। I said, if I keep this bottle out in the open, what will I find inside? और यदि हमने बताया यदि हम बाहर रखते हैं इसे खुले में तो हम क्या पाएंगे इसमें? Small keydays, flies, dust, leaf, everything. पूरा मिट्टी कीड़ा वो सब उसमें आ जाएगा। So we see that this water does not become any more good for me to drink it. तो फिर हम ये देखते हैं कि जो पानी अब और अच्छा नहीं होगा हमारे लिए पीने के लिए। So God removes the spiritual covering तो जो आत्मिक कवच है परमेश्वर उसे हटा देता and है। we are open for Satan to steal, kill and destroy our तो lives. फिर हम शैतान के लिए खुले हुए होते हैं कि वो हमारे जीवन को घात करे, नाश करे और उसमें परेशानी लाए। And that's when we have sickness and all kinds of problems in our life. और तभी हमारे पास हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती, बीमारी होती And I है। also told you we cannot blame God for that. और ये भी बताया कि हम उस बात के लिए परमेश्वर को दोष नहीं दे But सकते। when it happens like this, और जब इस तरीके से होता है some people can learn. कुछ लोग सीख सकते हैं I have done things that are wrong. कि जो बातें मैंने की वो गलत है, And, I've gone away from God. मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूँ। And they can repent and come back from God and God can restore them. और वो पश्चाताप करके वापस आ सकते हैं परमेश्वर के पास और परमेश्वर उन्हें फिर से कर सकता है नया। So it's important for us to understand तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको समझना that God does not give us sickness and disease to teach us some spiritual कि lessons. परमेश्वर जो है हमें बीमारियां रोगों को नहीं देता जिससे कि हम कोई आत्मिक सबक सीखे। Then the Bible says that God chastens us or corrects us. और लेकिन बाइबल ऐसा बताती है जो परमेश्वर है हमें सुधारता है। The word chasten means to train up a child or to educate a child. और ताड़ना देने का मतलब है किसी बालक को प्रशिक्षण देना या उसे शिक्षा देना। Now you can ask the question, then why does God chasten us? तो आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि परमेश्वर हमें ताड़ना क्यों देता है? If you look at Hebrews chapter 12, और यदि हम देखें इब्रानियों 12 अध्याय it's on page number 150, top of page number 150. और पेज नंबर 161 पे है। Hebrews chapter 12 verses 5 to 11. इब्रानियों 12 अध्याय 5 से 11 तक। It says God chastens those he loves. और वो कहता है कि परमेश्वर जिन्हें प्रेम करता है उन्हें ताड़ना देता है। ताड़ना देता और chasten means training up. और ताड़ना देने का मतलब वो हमें
तैयार करता है, हमें सिखाता है, educate us. हमें सिखाता है। And he says, why does he educate us? और वो कहता है हमें वो क्यों सिखाता है, Why does he chasten us? क्यों हमें ताड़ना देता है। Look at verse yeah, he trains us and he chastens us so that he can train us in holiness and righteousness. तो वो हमें इसीलिए ताड़ना देता है जिससे कि हमें उसकी पवित्रताई में बना सके, बढ़ा सके। So the reason why God educates us and trains us is so that we can be holy and righteous like और जो he कारण is. है परमेश्वर हमें ताड़ना देता है वो ये है कि ताकि हम भी उसकी तरह पवित्र हो सके, धर्मी हो सके। Yes, God chastens us, हाँ, परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, but he does not use sickness and disease to chasten us. लेकिन जो बीमारियां, रोग है वो उनका इस्तेमाल नहीं करता हमें ताड़ना देने के लिए। Then what do you think that he uses to chasten us? तो आप क्या सोचते हैं वो क्या इस्तेमाल करता है हमें ताड़ना देने के लिए? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Come on, give me some example. कुछ उदाहरण हमें दीजिए। What does God use to chasten us? परमेश्वर क्या इस्तेमाल करता है हमें ताड़ना देने के लिए? आप सबके पास क्या है? Yes, the word of God. परमेश्वर का वचन। So God uses the word of God to train us, to correct us, to chasten us. परमेश्वर अपने वचन का इस्तेमाल करता है हमें सुधारने के लिए, हमें what- सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए। And what else does he use? The word of God. और क्या इस्तेमाल करता है परमेश्वर का वचन? Who lives in us? हमारे अंदर कौन जीता है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। And thirdly, और तीसरा, why do we all go to church? हम सब क्यों कलीसिया में जाते हैं? Fellowship, yes, believers. संगति के लिए, विश्वासियों के साथ। So God uses his word. तो परमेश्वर अपने वचन का इस्तेमाल करता है, He uses the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करता है, And he uses the fellowship of believers और जो विश्वासियों की संगति होती है उनका इस्तेमाल करता to है bring discipline in our lives. हमारे जीवन में अनुशासन लाने के लिए। So please tell your neighbor, तो कृपया आपके पड़ोसी को बोले, it's not, God does not use sickness and disease to discipline us. परमेश्वर हमें अनुशासित करने के लिए बीमारियां, रोगों का इस्तेमाल नहीं करता है। Oh. But God uses लेकिन परमेश्वर इस्तेमाल करता है his word, उसका वचन, his Holy Spirit, पवित्र आत्मा and the fellowship of believers. और विश्वासियों की संगति। So please tell that to your neighbor. तो ये आपके पड़ोसी को बोले, God uses his word, the Holy Spirit, and fellowship of believers to discipline us. परमेश्वर हमें अनुशासित करने के लिए उसके वचन, पवित्र आत्मा और विश्वासियों की संगति का इस्तेमाल करता है। Amen? आमेन। Okay, I think it's time for a break. 11:30, yeah? 11:35. Oh, 11:25 is the break. They've forgotten. So what time we have to start? 11:40. Okay, so it's 11:33. You all can come back at 11:43 and we'll start. Okay, 10 minutes break. तो 10 मिनट का ब्रेक लेके हम वापस आ सकते हैं।